Good morning, dear students. My name is Dr. Indermal Goyal. Today in this video, we will discuss about closing entries. There are different type of entries which are prepared in proper journal, like opening entry, closing entries, adjustment entries, transfer entries, rectification entries, and miscellaneous entries. In proper journal, we record all those transactions and entries which are not recorded in any other subsidiary books. I have described in detail through a separate video titled as Proper Journal, Transactions to be recorded in proper journal, and we have discussed in that video about different type of entries like opening entry, closing entries, adjustment entries, transfer entries, rectification entries, and miscellaneous entries. Today in this video we will discuss only about closing entries. Closing entries are those entries which are recorded in proper journal to close all the nominal accounts at the end of the year and to transfer the balance of each account into financial statements like manufacturing account, trading account, and profit and loss account according to the nature of each item, which may be related to purchase, sales, purchase return, sales return, opening stock, closing stock, indirect incomes and gains, indirect expenses and losses. So all the nominal accounts are ultimately closed at the end of the year by transferring to manufacturing account or in trading account or in profit and loss account according to their nature. You know, there are three types of account: personal account, real account, and nominal account. Personal account and real account balance are transferred to balance sheet at the end of the year to disclose financial position of the business, and total or the balance of all the nominal accounts are transferred to manufacturing account if the account relates to production, manufacturing or factory. All the direct expenses, purchase returns, sales return, opening stock and closing stock, which are directly related to goods, are transferred to trading account. So they will be closed through trading account. And all indirect expenses and losses, incomes and gain are transferred to profit and loss account. So they will be closed through profit and loss. तो हमने अलग अलग वीडियो बनाया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड वीडियो बनाकर अपलोड किया है, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो है मेरा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड अलग वीडियो है, एंड बैलेंस शीट से रिलेटेड भी एक अलग वीडियो है, और इसके अलावा प्रॉपर जर्नल का एक अलग वीडियो मैंने बनाया था जिसमें हमने क्लोजिंग एंट्रीज की बात की थी। तो आपको वो वीडियो भी देखना है, और आपको फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनसे रिलेटेड ये तीन वीडियो अगर आप देखेंगे ना, तब आपको ये क्लोजिंग एंट्रीज कैसे हुई वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने मेरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड वीडियो देखा है तो आपने पता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में हमने लिखा था टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फिर हमने लिखा था टू रॉ मटेरियल यूज्ड, और उसके बाद में लिखा हमने टू डायरेक्ट एक्सपेंसेज रिलेटेड टू परचेज एंड एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड एक्सपेंसेज रिलेटेड टू ऑपरेशन ऑफ द फैक्ट्री, यानी कि सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेज हमने डेबिट किया था। और क्रेडिट में हमने लिखा था बाय सेल ऑफ स्क्रैप, फिर
सेकंड में हमने लिखा था बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड देन हमने लिखा था बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड क्लोजिंग एंट्रीज की बात करें तो पहली एंट्री बनेगी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस बीइंग ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट क्लोज्ड। ठीक है, पहला एंट्री। फिर दूसरी एंट्री हो जाएगी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल अकाउंट। तो रॉ मटेरियल जो यूज्ड हुआ वो अपन डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड एंट्री आप करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू परचेज एंड एक्विजिशन एंड प्रोक्योरिंग द गुड्स टू द बिजनेस प्लेस है वो सारे आ जाएंगे। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री एक्सपेंसेज अकाउंट करेंगे तो जो फैक्ट्री वर्ड आया और फैक्ट्री का ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेज हैं वो सब आप उसकी टोटल लिख सकते हैं, जैसे फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर, मोटिव पावर, फैक्ट्री इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट और फैक्ट्री। तो जितना भी फैक्ट्री एक्सपेंसेज है वो सब एक साथ आ गए और उनकी क्लोजिंग एंट्री बन गई। उसके बाद जब हम क्रेडिट साइड के आइटम की बात करें तो जो हमने स्क्रैप को सेल किया तब हमारी एंट्री हो जाएगी सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। आप देखिए हर ट्रांजैक्शन की नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड अकाउंट की दो एंट्री होती है। एक जर्नल एंट्री वो होती है एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन और दूसरी एंट्री होती है एट एंड ऑफ द ईयर टू क्लोज दैट अकाउंट। जैसे आपने ड्यूरिंग द ईयर जब कोई स्क्रैप सेल किया था, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो डिफेक्टिव गुड्स है, स्क्रैप है, वो सेल किया तब एंट्री थी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट या बायर अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ स्क्रैप। ये जर्नल एंट्री हुई एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। और अब एंड ऑफ द ईयर जब हमें ऑपरेशनल रिजल्ट निकालना है तब हमारी एंट्री क्या होगी, जो अकाउंट हमने क्लोज किया था क्रेडिट किया था जर्नल एंट्री में, अब क्लोजिंग एंट्री बनाते समय वो डेबिट हो जाएगा और वो कौन से खाते में ट्रांसफर होगा, सेल ऑफ स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट में आप लिखोगे तब हमारी एंट्री क्या बनेगी, सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सेल ऑफ स्क्रैप की एंट्री होगी। उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है वो मैन्युफैक्चरिंग की क्रेडिट में आपने लिखा है तो उसकी क्लोजिंग एंट्री क्या बनेगी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बीइंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ट्रांसफर। ठीक है, दूसरी एंट्री होगी। और थर्ड एंट्री होगी क्या, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट में हमने लिखा था बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो एंट्री बनेगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बीइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर्ड। ये नरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड जो क्लोजिंग एंट्री है वो आपको मैंने बताई। अब हम बात करेंगे जो ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले आइटम्स हैं उनकी, और उसके बाद में जो P&L में आने वाले अकाउंट्स हैं उनको कैसे क्लोज करते हैं। तो देखिए पहली एंट्री जो है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आने वाले सारे आइटम है। तो ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया था, आपका परफॉर्मा उसका माइंड में होना चाहिए। और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक आता है, फिर हम लिखते हैं टू परचेज में कैश परचेज क्रेडिट परचेज दोनों ऐड करके उसमें से अपन परचेज रिटर्न घटाते हैं। फिर हम लिखते हैं टू डायरेक्ट एक्सपेंसेज, जितने भी परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेज है वो आ जाते हैं। क्रेडिट में आता है बाई सेल्स, कैश और क्रेडिट सेल्स दोनों जोड़ के लिखते हैं, उसमें से सेल्स रिटर्न घटा के नेट सेल्स को बाहर लिखते हैं। और फिर ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो अब मैं जो एंट्री बना रहा हूं क्लोजिंग एंट्री रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट बना, राइट। तो उसमें जर्नल का फॉर्मेट बना है, ठीक है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, तो डेट क्लोजिंग एंट्री की लास्ट डेट ऑफ द ईयर ही होगी, बिकॉज क्लोजिंग एंट्रीज आर प्रिपेयर्ड एट एंड ऑफ द ईयर टू क्लोज द बुक्स एंड अकाउंट्स। तो आप ये बनाएंगे फॉर्मेट जर्नल, डेट पर्टिकुलर LF
रुपीज डेबिट एंड क्रेडिट। तो फर्स्ट एंट्री किससे रिलेटेड होगी हमारी? फर्स्ट एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आने वाले सारे आइटम से रिलेटेड एंट्री बनेगी और वो क्या होगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, परचेज मतलब परचेज ऑफ गुड्स ही होता है, टू परचेज अकाउंट एंड टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैंने सारे एक्सपेंसेस को मर्ज करके मेरी एक एंट्री बना दी है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज एंड टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। परचेज का मतलब ये नेट परचेज है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए थे। कौन कौन से? हमारे वेजेस, कैरेज, कैरेज इनवर्ड, फ्राइट, इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, रॉयल्टी, डॉक चार्जेस, है ना। जितना भी एक्सपेंसेस है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने डिस्कस किए वो सारे के सारे इधर आ जाएंगे और नरेशन हो जाएगा बी अकाउंट्स क्लोज्ड, अकाउंट्स क्लोज कौन से? अबाउट अकाउंट्स, ये नरेशन हो गया। अब उसके बाद जो दूसरी एंट्री है हमारी वो होगी कौन सी? जो परचेज रिटर्न है ना उसको हमें क्लोज करना है। तो परचेज रिटर्न एंड परचेज आर इंटर रिलेटेड। परचेज रिटर्न इज ऑलवेज शोन बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम परचेज। एज पर रूल परचेज अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है और वो एक एक्सपेंसेज है और परचेज रिटर्न से हमारा एक्सपेंसेज कम हो जाता है क्योंकि जो माल हमने खरीदा उसमें से कुछ माल हमने लौटा दिया। जैसे अगर हमने 50,000 का माल खरीदा तो हमारा एक्सपेंसेज 50,000 होगा, लेकिन अगर मान लो हमने 5,000 का माल वापस लौटा दिया तो हमारा एक्सपेंसेज 5,000 से घट गया। तो ये एक तरह से एक्सपेंसेज में कटौती हमारे इनकम को बढ़ाती है, इनकम के समान है। तो परचेज रिटर्न में माल हमारे यहाँ से जाता है तब हमने एंट्री क्या बनाई थी? परचेज रिटर्न की एंट्री होती है सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। लेकिन अब जब हमें परचेज रिटर्न को क्लोज करना है तो परचेज रिटर्न को हमेशा परचेज से क्लोज करेंगे और क्लोज करेंगे तो मैंने बोला ना जो जर्नल एंट्री थी उस जर्नल एंट्री में जो अकाउंट क्रेडिट होता है तो क्लोजिंग एंट्री में वो डेबिट होगा। क्रेडिट और डेबिट दोनों नलीफाई हो जाते हैं तब वो हमारा अकाउंट क्लोज हो जाता है और वो फाइनल अकाउंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो ट्रांसफर हो जाता है। तो परचेज रिटर्न इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू परचेज अकाउंट, इसलिए हमारी एंट्री बनेगी क्या? परचेज रिटर्न अकाउंट। नेचुरल बैलेंस परचेज रिटर्न का क्रेडिट होता है और अब हमें इसको क्लोज करना है और हम एंट्री करेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज बी परचेज रिटर्न अकाउंट क्लोज। ये नरेशन हो जाएगा बी परचेज रिटर्न अकाउंट क्लोज। तो ये एंट्री नंबर 2 है। फिर थर्ड एंट्री जो हमारी बनेगी वो है सेल्स रिलेटेड। सेल्स का नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होता है। अब इसको क्लोज करना तो एंट्री बनेगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। आपने पता सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट माना जब हम माल बेचते हैं तब एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स नेचुरली क्रेडिट होता है एट द टाइम ऑफ सेल्स and it will be debited at the time of closing the sales account and the entry will be sales account debit to credit account. ठीक है, being sales account closed, being sales account closed। ऐसे ही जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी ट्रेडिंग में क्रेडिट में दिखाया जाता है। इसको भी आप या कंबाइंड एंट्री भी कर सकते थे और मैंने अलग कर दिया है तो सेपरेट एंट्री बना देंगे। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये
ये अमाउंट लिखते हैं डेबिट क्रेडिट का, जो भी अमाउंट होगी क्वेश्चन में वो लिख देंगे। अच्छा, फिर जो फिफ्थ एंट्री हमारी सेल्स रिटर्न को क्लोज करने की। सेल्स रिटर्न में माल वापस हमारे पास आता है। जब हम सेल्स करते हैं तो हमारा इनकम बढ़ती है और वो क्रेडिट होता है सेल्स, लेकिन सेल्स रिटर्न होने से हमारी इनकम घट जाती है, इसलिए सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करते हैं। सेल्स रिटर्न की जो जर्नल एंट्री होती है, एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग द गुड्स बाय द कस्टमर द एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न का नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है। अब इसे क्लोज करना है तो हम क्रेडिट करेंगे, और सेल्स रिटर्न को किससे क्लोज करेंगे? सेल्स अकाउंट से क्लोज करेंगे, क्योंकि सेल्स रिटर्न के कारण हमारी सेल्स घट जाती है। सेल्स का नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होता है, तो अब यहाँ डेबिट हो जाएगा और वो एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो देखिए सेल्स जो क्रेडिट था वो डेबिट हो गया, और सेल्स रिटर्न जो डेबिट होता है वो क्रेडिट हो गया, और सेल्स कम हो गई टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न। नरेशन लिखो बी सेल्स रिटर्न अकाउंट क्लोज्ड लाइक दिस। और उसके बाद में अब हम ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट निकालते, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट नेट प्रॉफिट हो सकता है या ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है या ग्रॉस लॉस। ये कैसे पता लगेगा? जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, तो डेबिट में लिख दिया टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज एंड टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर क्रेडिट में हमने लिख दिया बाय सेल्स एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स को सेल्स रिटर्न घटाकर लिखेंगे, और परचेज को है उसमें से परचेज रिटर्न घटाकर लिखना है। तो ये एंट्री करने के बाद में अगर क्रेडिट साइड की टोटल ट्रेडिंग अकाउंट की ज्यादा होगी, किससे? डेबिट साइड से, तब आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट की हमारी एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L, क्योंकि आपने पता है जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो उसके क्लोजिंग में अपन क्या लिखते हैं? फाइनली टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो ट्रेडिंग में हमने लिखा टू P&L, तो एंट्री बन गई हमारी क्लोजिंग एंट्री। हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बी ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर, ये हो जाएगा। और अगर मान लो ग्रॉस लॉस तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। क्योंकि ग्रॉस लॉस जब होगा तो अपन क्या करते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। ग्रॉस लॉस कब होगा? जब हमारे ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस की टोटल क्रेडिट टोटल हमारी सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक से ज्यादा होती है। When the debit side total of the trading account item is higher than the total of the credit side item, then it will result out gross loss. तब हम लिखेंगे by gross loss transfer to P&L. अब अगर इसका आपका एंट्री बनाओगे तो it will be profit and loss account debit to trading account. The profit and loss account debit to trading account. और नरेशन हो जाएगा be gross loss transfer. ग्रॉस लॉस ट्रांसफर एंड अमाउंट आ जाएगी। तो इट विल बी क्लोजिंग एंट्री रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्लोजिंग एंट्री क्या होती है वो मैंने आपको वर्बल बता दिया, और ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जो एंट्रीज होती है, जो ट्रेडिंग में रूल अप्लाई हुआ वही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के लिए होगा। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्लोजिंग एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने पता है जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद में ही बन सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसकी शुरुआत कहां से होती है? ये जो ट्रेडिंग एंड P&L का ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस की एंट्री होती है ना, उससे होती है। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर। अगर ग्रॉस लॉस है बिजनेस का तो P&L अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं क्या? टू ट्रेडिंग अकाउंट बी ग्रॉस लॉस ट्रांसफर। अब उसके बाद में ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में
सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आते हैं। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड जो हम एंट्री बनाएंगे उसमें पहली एंट्री है फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। कौन से? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर दोज आइटम्स which are related to office and administration and which are related to sales and distribution। अगर आपको क्लोजिंग एंट्रीज अच्छी तरह से समझनी है तो हमारा जो वीडियो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का देखोगे तब आपको मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्लोजिंग एंट्री इजीली समझ में आ जाएगी। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड आइटम की क्लोजिंग एंट्रीज को अच्छी तरह समझना है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है वो आप माइंड में रखिए। और मेरा पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट का जो वीडियो है ना वो आप देखें और उसके बाद में ये क्लोजिंग एंट्री वाला देखें, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाले सारे आइटम का क्लोजिंग एंट्री कैसे की जाती है उसको अगर अच्छी तरह समझना है तो मेरा एक अलग वीडियो है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए ट्रेडिंग कंसर्न या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसको अगर आप देखेंगे और फिर बाद में जो ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड आइटम्स की क्लोजिंग एंट्रीज को समझेंगे, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्योंकि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हम पहले जर्नल बनाते हैं, सब्सिडरी बुक बनाते हैं, फिर हम लेजर बनाते हैं, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी जो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड पीएनएल में अकाउंट में जो आइटम आते हैं ना वे सब नॉमिनल अकाउंट है, उनकी सबकी क्लोजिंग एंट्रीज बनती है। और जो सारे हमारे बैलेंस और पर्सनल एंड रियल अकाउंट है वो बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं और जो बैलेंस शीट में दिखाए जाने वाले आइटम है ना उनकी कभी क्लोजिंग एंट्री नहीं बनाई जाती है, क्योंकि वो तो क्लोज बैलेंस से ही क्लोज होते हैं और बैलेंस से ही नेक्स्ट ईयर की बुक्स में वापस रीओपन होते हैं। तो इसलिए उनकी कोई क्लोजिंग एंट्री नहीं बनाई जाती। किसकी? पर्सनल एंड रियल अकाउंट के बैलेंस की। सिर्फ नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड आइटम्स हैं, अकाउंट्स हैं, उनको क्लोज करके हम ऑपरेशनल रिजल्ट निकालते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाकर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को बनाकर हम ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस निकालते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाकर हम नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस निकालते हैं। जो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस होता है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। जैसे नेट प्रॉफिट होगा तो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे क्योंकि इससे हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। और अगर बिजनेस का ऑपरेशन से ड्यूरिंग द ईयर हमें एंड ऑफ द ईयर पता लगता है कि लॉस हुआ तो वो नेट लॉस है वो कैपिटल में से घटाया जाता है। तो इसलिए हम अब कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड क्लोजिंग एंट्री। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएंगे सारे एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट जो हमने पे किया ड्यूरिंग द ईयर। जैसे हमने सैलरी पे करी तो जर्नल एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर सैलरी अकाउंट क्लोज करना तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सेकंड। तो हमारी कॉस्ट एंट्री टू क्लोज ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज अकाउंट, nominal account related to indirect expenses and losses which are debited in profit and loss account। हमारी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल indirect expenses related to office and administration and related to sales and डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट डिस्कस किया था उसमें वो सारा मैंने डिटेल में बताया। तो वहां से आप नाम लेके सारा यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज और टू ऑल लॉसेज। तो एक्सपेंसेज एंड लॉसेज नेचुरली डेबिट होते हैं और एंड ऑफ द ईयर क्रेडिट होंगे क्लोज, उन अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्लोजिंग एंट्री बनाने समय। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज आर डेबिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट whereas indirect expenses and losses are debited to profit and loss account। तो इसलिए given profit and loss account debit to all indirect expenses and to all losses account। और losses का मतलब वही bad debts, depreciation, loss by fire, charity, discount allowed etc। और all indirect expenses का मतलब वो सारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जैसे
बैंक चार्जेस, डायरेक्टर फीस, ऑडिट फीस, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, जितना भी एक्सपेंसेज है जो P&L में दिखाए गए वो सब इनडायरेक्ट है, वो सब इधर आ जाता है। तो मैंने एक कंपाउंड एंट्री एक ही बनाई है, कॉमन एंट्री, नरेशन हो जाएगा बी इनडायरेक्ट expenses and losses transfer, ये इसका नरेशन फॉर ऑल आइटम्स टू बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर दूसरी एंट्री क्या होगी, जो हमारे P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड में आने वाले सारे आइटम्स हैं उनके लिख दो, और P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में जितने भी आइटम आते हैं वो सब हमारे इनकम एंड गेन है, वो हम क्रेडिट में लिखते हैं। कौन कौन से, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, अप्रेंटिसशिप फीस रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। So there are so many items which we have discussed in detail in our separate video preparation of profit and loss account। अगर आपको P&L से रिलेटेड अकाउंट की क्लोजिंग एंट्रीज को समझना है तो you have to keep the format of profit and loss account in your mind, and I will advise you to watch my video preparation of profit and loss account. You will be able to understand certainly, and then you prepare closing entry. It will be very easy when you have the format of profit and loss account in your mind. Then you can easily prepare the closing entries. What is closing entry? Closing entries are those entries which are prepared at the end of the year to close all the nominal account, to calculate ऑपरेशनल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस निकालते हैं, इसलिए इसके डेबिट साइड में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आते हैं और क्रेडिट साइड में सारे इनडायरेक्ट इनकम्स एंड गेन आते हैं। वो सारे नाम मैं नहीं लिखूंगा, मैं यहां सीधा लिखूंगा फॉर ट्रांसफर ऑफ फॉर क्लोजिंग ऑफ इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन अकाउंट। तो हमारा एंट्री बनेगी ऑल इनडायरेक्ट इनकम से अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ऑल गेन्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये पहले क्रेडिट होता है। जैसे आपको कमीशन मिला तो एंट्री होगी हमारी क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, वो जर्नल एंट्री थी एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, और क्लोजिंग एंट्री होती है एट द एंड ऑफ द ईयर टू क्लोज द अकाउंट। तो हमारी कमीशन रिसीव्ड की क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, अब होगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो commission received is indirect income of the business, so it is to be shown in the credit side of the profit and loss account। तो इसकी एंट्री बनी तो क्या होगी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू P&L, तो P&L में आ जाएगा बाय कमीशन। तो मैं इसे दे रहा हूं हेडिंग लिख रहा हूं बाय ऑल इनडायरेक्ट इनकम। अब इसमें कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड सब शामिल है, अप्रेंटिसशिप फीस हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, और गेन्स में हमारा प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन हो या जो डिस्काउंट रिसीव्ड हो, वो सब आ जाता है। तो ऑल गेन्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन टू बी इनडायरेक्ट इनकम्स एंड गेन्स ट्रांसफर, इनडायरेक्ट इनकम्स एंड गेन्स अकाउंट क्लोज्ड भी लिख सकते हैं। तो ये एक एंट्री होगी सारे डेबिट साइड के आइटम की जो P&L में आते हैं डेबिट साइड में, दूसरी एंट्री होगी सारे इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन जो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में आते हैं। फिर थर्ड एंट्री क्या होगा, रिजल्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज दैट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट नेट ऑपरेशनल रिजल्ट। द नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेस मे बी either net profit or net loss, which is transferred to capital. The net profit is to be added in capital, and if there is a net loss, it is to be subtracted from capital while preparing the balance sheet. And you know, capital is shown in the liability side of the balance sheet. If balance sheet is being prepared in order of fixity, the capital will appear on the top of the liability side. और कैपिटल में मैंने आपको बताया था 3 आइटम ऐड होते हैं, 5 आइटम लेस होते हैं। कौन कौन से ऐड होता है कैपिटल में? ओपनिंग कैपिटल में ऐड होगा ऐड एडिशनल कैपिटल, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐड नेट प्रॉफिट। लेस क्या क्या होता है? लेस होता है हमारा नेट लॉस, लेस होता है ड्राइंग, लेस होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
लेस होता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और लेस होता है हमारा इनकम टैक्स पेड। ये हमारे इनकम टैक्स एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल एक्सपेंसेज होते हैं, इसलिए वो भी कैपिटल में से घटाए जाते हैं। और बाकी ड्राइंग का मतलब हाउस होल्ड एक्सपेंसेज, एनी एक्सपेंसेज पेड बाय द बिजनेसमैन आउट ऑफ द बिजनेस फॉर हिज फैमिली हाउस होल्ड एंड डोमेस्टिक पर्पज, तो वो हमारा उसका ड्राइंग कहलाएगा। तो अब हमारा जो नेट रिजल्ट है वो नेट प्रॉफिट हो सकता है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे तो आपने पता है डेबिट साइड में हमने सबसे लास्ट में लिखा है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो इसकी हमारी जो क्लोजिंग एंट्री बनी वो क्या हुई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो थर्ड एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू कैपिटल या टू क्लोज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लेगा, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, शुद्ध लाभ को हस्तांतरित किया, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, और ये अमाउंट आ जाएंगे नेट प्रॉफिट। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस में नेट प्रॉफिट हो, कभी कभी नेट लॉस भी हो सकता है। किसी एक बिजनेस का किसी एक वर्ष में वर्ष का परिणाम या तो शुद्ध लाभ होगा या शुद्ध हानि होगी, नेट प्रॉफिट हो सकता है या नेट लॉस, दोनों नहीं हो सकता। लेकिन अपन को एंट्री तो दोनों करनी पड़ेगी समझने के लिए। तो आप ये देखिए जो थर्ड एंट्री है वो नेट प्रॉफिट होने पर होगी। नेट प्रॉफिट कब होगा, जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड के सारे आइटम की टोटल है ना उसके डेबिट साइड के सारे आइटम की टोटल से ज्यादा होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरुआत कहां से होती है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस से होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे ऊपर आप लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, और अगर ग्रॉस लॉस हो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में सबसे ऊपर लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस बीडी। उसके बाद में आएंगे क्रेडिट साइड में सारे इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन, डेबिट में आएंगे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, और उसके बाद में जो डिफरेंस की अमाउंट होगी वो होगी नेट प्रॉफिट या नॉट नेट लॉस। नेट प्रॉफिट कब होगा, जब क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा होगी। इसके अपोजिट अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के सारे आइटम की टोटल उसके क्रेडिट साइड के सारे आइटम की टोटल से ज्यादा हो तब होगा नेट लॉस। ये व्यवसाय के लिए एक नेगेटिव रिजल्ट है। ये व्यवसाय की पूंजी को घटाएगा, क्योंकि लॉस मींस ट्रांसफर ऑफ कैपिटल इन फॉर्म ऑफ लॉस। तो नेट लॉस होने पर हमारी एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट इज द पर्सनल अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर। जब किसी बिजनेसमैन को हानि होती है तो उसने जो पैसा लगाया उतना रुपया कैपिटल का कम हो गया। कैपिटल का नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए अब हम डेबिट करेंगे और एंट्री करेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या आएगा, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल, तो एंट्री बनी कैपिटल टू बी, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नरेशन हो जाएगा बी नेट लॉस ट्रांसफर। Right? So these are the closing entries related to manufacturing account, trading account and profit and loss account. If you want to understand these entries in better way, I will advise you to watch my video on preparation of manufacturing account, फिर preparation of trading account and then preparation of profit and loss account. ये जो मैंने एंट्रीज बनाई है उसी का फॉर्मेट को आधार मानते हुए हमने क्लोजिंग एंट्री बनाई है। क्लोजिंग एंट्री सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंस की ही बनेगी, उनके टोटल की ही बनेगी और एंड ऑफ द ईयर बनती है और बुक्स को और अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए बनाई जाती है, इसलिए इन्हें क्लोजिंग एंट्रीज कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये हम थर्ड स्टेज, क्योंकि समरी स्टेज होती है हमारी थर्ड स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम पहले ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस होते हैं सारे पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट के, उनसे हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस, और इसलिए आपको मेरा एक और वीडियो मैंने बनाया प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, वो भी आपको पहले देखना चाहिए।
तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को देखने से आपको पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस समझ में आएगा। फिर मेरी जो वीडियो है प्रिपरेशन ऑफ जर्नल, हाउ टू प्रिपेयर जर्नल, फिर प्रिपरेशन ऑफ लेजर, हाउ टू प्रिपेयर लेजर, और उसके बाद में ट्रायल बैलेंस, हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। फिर हमने बनाए हैं ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट और प्रॉफिट। ये सब बनाने के बाद भी मैं आपको समझा रहा हूँ क्लोजिंग एंट्री, सो दैट इट बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो कीप वॉचिंग माई ऑल वीडियोज एंड वॉच ऑल द वीडियोज इन सीक्वेंस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन बेटर वे। आप घर बैठे अकाउंटेंसी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, बट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, you have to keep watching, you have to keep reading the books, you have to prepare the notes, you have to write in your copy। जो हम यहाँ बोर्ड पे समझा रहे हैं, जब हम समझा रहे होते हैं तब आपको अपना पेन कॉपी साथ में रखना है और उसको अपने कॉपी में नोट भी करके जाना है, फिर बुक से भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी थ्रू व्हाट्सएप, I will solve your all problem pertaining to accounting, preparation of accounting, concept of accounting. Okay, thank you very much. Keep your study continue. Keep yourself safe and healthy. God bless you.